What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 12th of Feb, and today we had the Sensex weekly expiry, and Nifty today closed 150 points in red. And most of this fall was contributed by only one index, that is IT. The rest of the other indices were alright. Bank Nifty closed flat, Realty Index closed in green, Pharma also closed in minor red, but most of the fall was contributed by Nifty IT because of the concerns over AI-led disruption. A lot of these tech CEOs are kind of shrinking the timeline on when AI would completely take over traditional coding, and because of these concerns, the IT index slid down by more than 5.5%, and all the IT heavyweights including TCS, Infosys, Tech Mahindra, L&T, Mindtree, you name them all these stocks slid as high as 6% intraday. And even the India VIX marginally spiked today, सिर्फ एक 2% का spike देखने को मिला है, which is practically nothing. And to talk about today's Sensex expiry, the Sensex straddles opened at 300. कल 400 के आसपास close हुआ था and almost 100 points of overnight crush देखने को मिला. 300 straddle open हुआ and the Sensex opened at somewhere around 84,000 levels, and 84,000 straddle gave some sort of a linear decay of 100 points in the first 1.5-2 hours. After 11 o'clock, the 83,800 levels got taken down, and then from 83,700 the market shot back up to 84,000 levels, and most of the gamma moves started materializing post 1 o'clock. After 1 o'clock, the market started showing erratic kind of a gamma moves, and especially on the put side, after 2:45 p.m. the puts blew up by more than 5 times. Post 2 o'clock, because of the increased participation of these algos, these gamma moves have become some sort of a norm, and one has to always expect them. But apart from that, the expiry was quite manageable. So tomorrow is Nifty's 2 DTE. Let's get to the terminal and let's see Friday के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या बन सकता है. डेली चार्ट पे डेफिनेटली एक रेड क्लोज मिला है, बट मोस्ट ऑफ दिस रेड इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन इंडेक्स, IT इंडेक्स, सो आई वुड नॉट वरी टू मच. एंड एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, सो जब तक 25,500 के नीचे या 25,600 के नीचे हमको एक डेली क्लोज ना मिलता, तब तक हमारा जो बायस है वो बुलिश टू साइडवेज होना चाहिए ऑन अ पोजिशनल फ्रंट. एंड 26,000 के ऊपर हमारा एक डेली क्लोज अगर मिल जाता है, देन वी कैन कन्वर्ट आवर बायस टू कंप्लीटली बुलिश. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस 26,000 लेवल जो है वो फॉर दिस, एटलीस्ट फॉर दिस सीरीज, विल बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस, बिकॉज 26,000 पे काफी ज्यादा जो कॉल राइटर्स आ गए हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्ली 26,000 लेवल विल बी intact at least for this expiry. At least that's what I'm expecting. And at the same time, we have to watch this Nifty IT index very closely, because आगे वाले टाइम में प्राइस एक्शन क्या होने वाला है उसके बेसिस पे निफ्टी का भी काफी ज्यादा मूवमेंट अफेक्ट होने वाला है. बिकॉज अगर बेरिश के ट्रेंड में निफ्टी IT might act as a culprit and it'll drag निफ्टी डाउन along with it. So थोड़ा निफ्टी IT को हम लोग देखना पड़ेगा, एंड उसके बेसिस पे हमारा निफ्टी का भी परफॉर्मेंस है वो ग्रेटली डिपेंड करने वाला है. तो अगर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करें, लेट्स गो टू द सेंसेक्स स्ट्रैडल चार्ट्स. यस, सो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का ओवरनाइट क्रश देखने को मिला, एंड एस्टरडे मैं वीडियो में बताया था कि डोंट बी सरप्राइज्ड इवन इफ यू सॉ 100 पॉइंट्स क्रश, बिकॉज लगातार यू कैन सी दैट सिंस 4 days यू कैन नोटिस 900 का जो स्ट्रैडल क्लोज हुआ था 800 पे ओपन हुआ, 750 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट 650 पे ओपन हुआ, एंड यहाँ पे 550 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ था एंड 450 पे कल ओपन हुआ था, एंड कल 400 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ एंड आज 300 के आसपास ओपन हुआ. एंड इन स्पाइट ऑफ स्ट्रैडल ओपनिंग एट 300, देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ लीनियर क्रश टिल ऑलमोस्ट 1030 के आसपास ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का एक लीनियर क्रश देखने को मिला. एंड हमने ये भी डिस्कस किए थे कि कल के वीडियो में कि अगर मार्केट 84,000 के आसपास खुलेगा तो देन 84,000 स्ट्रैडल शुड बी ट्रेडेड टिल 83,800 लेवल्स आर क्लियरली टेकन आउट. तो 83,800 लेवल जो है तो ऑलमोस्ट 11 o'clock तक इंटैक्ट रहा, इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहा, एंड इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक 83,000 लेवल्स 83,800 लेवल्स ब्रीच हुए, एंड उसके बाद मार्केट्स अगेन 83,700 से वापस एक 200-300 पॉइंट्स का एक अपमूव देखने को मिला, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट वाज गामा ऑल ओवर अगेन. बट अगेन, इफ यू हैड बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ mark to market cushion until this point, then even if you had lost some amount of money from your mark to market towards the end of the trading day, I think you would have definitely closed in green. So tomorrow is Nifty's 2 DTE. अगर निफ्टी की स्ट्रैडल की बारे में बात करें तो इट्स क्लोजिंग एट 216. सो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल एक फ्लैट या गैप अप या माइनर गैप डाउन, इन तीनों केस में 200 के आसपास स्ट्रैडल खुलने वाला है, बिकॉज यू कैन नोटिस दैट देयर हैज बीन अ बिट ऑफ fear carrying overnight positions. So because of which यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे जो क्रशेस दिख रहा है, एक सडन एक फॉल दिख रहा है, these are all overnight crashes. तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा overnight decay होने वाला है. तो tomorrow also we can see that there will be some amount of overnight crash. So most probably 200 के नीचे straddle खुलने वाला है, and again that makes
डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग काइंड ऑफ अनवायबल. बट अगेन ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कैन नोटिस दैट अ लॉट ऑफ 26,000 कॉल्स हैव बीन रिटर्न. 25,900 पे भी कॉल्स राइट हो चुके हैं एंड 25,800 के आसपास स्ट्रैडल्स बिल्ड हो चुके हैं. एंड टुडेस यहाँ पे जो 25,900 एंड 26,000 पे जो पुट्स अनवाइंड हुए हैं, ऑल दोस पुट्स हैव बीन शिफ्टेड टू 25,700, 25,500. बट यू कैन नोटिस दैट कॉल्स काफी ज्यादा हावी है एंड पुट्स में ज्यादातर ओपन इंटरेस्ट दिखने को नहीं मिल रहा है. आई थिंक मार्केट्स आर प्राइसिंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन मूव going into the weekend and people are not that confident to short the puts and especially after what IT did today. सो अगर कल के प्राइस एक्शन के बारे में ट्रेड्स की अगर बात करें तो कैन नोटिस दैट टुडे वाज सम सॉर्ट ऑफ अ लीनियर डाउन ट्रेंडिंग काइंड ऑफ अ डे. एक स्लो एंड स्टडी डाउन साइड ग्राइंड था. बट एंड ऑल्सो ये जो गैप था, ये गैप कहीं ना कहीं ब्रीच हो गया था. बट आई वुड कंसिडर दिस एज सम सॉर्ट ऑफ अ लिक्विडिटी स्वीप. तो कल के लिए ये जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट बनने वाला है बिकॉज अगर ये लो ब्रीच हो जाता है देन निफ्टी के लिए अगला जो हॉल्टिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 25,650 के आसपास होने वाला है. तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है, लेट्स से गैप अप बोले तो 25,800 के ऊपर खुलता है, तो देन एनी डिप टुवर्ड्स 25,740 कैन बी यूज टू गो लॉन्ग विद जस्ट अ 20 पॉइंट स्टॉप लॉस. एंड अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन वी शुड बी रेडी टू चेंज आवर डायरेक्शन एज वेल. सपोर्ट स्टॉप एंड रिवर्स काइंड ऑफ अ ट्रेड हमको करना पड़ेगा. यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग यहाँ पे इनिशिएट करेंगे. विल नॉट वेट फॉर द प्राइस एक्शन बिकॉज अगर हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में या प्राइस एक्शन का या अगर डबल बॉटम का या एक एंगल्फिंग कैंडल का हम लोग वेट कर देंगे तो बेसिकली हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो खराब हो जाता है. तो आई वुड एंटर इंपल्सिवली राइट एट द ऑनसेट ऑफ दिस टिक. अगर एक टिक 25,750 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है तो वहीं पे मैं थोड़ा पोजीशन बना लेता हूं विद अ स्मॉल 25 पॉइंट स्टॉप लॉस. अगर वो 25 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड बिकॉज मार्केट के पास थोड़ा बहुत स्पेस नीचे की तरफ दिख रहा है. बिकॉज कम से कम मार्केट इस एरिया के आसपास आ जानी चाहिए, दैट इज समवेयर अराउंड 25,650 लेवल्स. तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 80 to 90 पॉइंट्स को हमका टारगेट मिलना चाहिए. बट अगेन दैट शुड हैपन इफ द मार्केट्स डोंट ट्रैवल मच ऑन एन इंट्राडे बेसिस. बट अगर मार्केट 25,850 के आसपास खुल के यहाँ पे आ जाता है देन मोस्ट प्रोबब्ली वी शुड गेट सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक एंड दैट दिस डिप शुड बी बॉट इन द इंट्राडे, राइट. एंड अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप खुल के अगर फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर आज का जो हाई अगर ब्रीच कर देता है देन वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक यहां पे आने के लिए वेट करो एंड देन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. तो बेसिकली यहां पे जब तक मार्केट यहां पे नहीं आता तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा. ऑफ कोर्स यहां पे थोड़ा बहुत हमको एक प्राइस एक्शन पॉइंट्स नजर आ रहा है बट आई वुड नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ शॉर्टिंग दिस बिकॉज जो आईटी है बिकॉज ऑफ सर्टन न्यूज आईटी ने निफ्टी को ड्रैग किया है. तो अगर मार्केट गैप अप खुल के यहां पे आ जाता है तो देन आई लुक फॉर द ब्रेकआउट एंड आई विल नॉट ट्राई टू मीन रिवर्ट द मार्केट्स. तो यहां पे इस मूव को मैं फेड करना नहीं पसंद करूंगा, रादर आई वांट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. बाकी फ्राइडे है, ज्यादा आपको टीटा डी के या वॉल क्रश नहीं मिलने वाला है. सो लिमिट योर पोजीशन साइज प्रॉब्ली 25% या 30% के साइज के साथ ही ट्रेड करो बिकॉज अगले हफ्ते फिर से हमको अपॉर्चुनिटीज आने वाला है एंड आफ्टर दिस अगेन विल गेट मंथली एक्सपायरी के टाइम पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलने वाली है. सो टुमारो लेट्स लिमिट आवर ट्रेड्स एंड लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू कम टू आवर लेवल्स एग्जैक्टली. तो शॉर्ट ट्रेड होने वाला है 26,000 के आसपास. अगर मार्केट गलती से 26,000 हिट हो कर देता है तो देन यहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट्स हिटिंग 26,000 लेवल्स ऑन फ्राइडे टुमारो इज प्रेटी लो. तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ट्रेड कल देखने को नहीं मिलने वाला है. बट मैं इस लेवल पे मैं मार्केट्स को शॉर्ट नहीं करने वाला हूं. अगर मार्केट्स गैप अप खुल के यहां पे आता है तो इफ द मार्केट्स ब्रेक आउट देन आई वेट फॉर द रीटेस्ट एंड देन आई गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. एंड अगर मार्केट्स गैप अप खुल के अगर आज का लो को टच करेगा तो देन यहां पे मैं एक छोटा सा लॉन्ग ट्रेड प्लान करूंगा. बट अगेन यहां पे इसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है देन आई विल नॉट हेजिटेट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. सो अपार्ट फ्रॉम दिस ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं. आई होप यू गाइस हैड अ डिसेंट एक्सपायरी. लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड पर्सनली स्पीकिंग आई क्लोज्ड एट 0.6% ग्रीन टुडे. सो इट वाज अ वेरी डिसेंट एक्सपायरी फॉर मी बिकॉज जिस प्रकार से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था बिकॉज 300 पे स्ट्रैडल खुला था तो आई वाज लाइक आज का ट्रेड भी गया बिकॉज इतने कम प्रीमियम पे मैं ज्यादा अग्रेसिवली जाता नहीं. आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अ डेल्टा मूव एंड मार्केट्स के डायरेक्शन के हिसाब से मैं पोजीशन करता हूं. तो आई स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लो बट टुवर्ड्स द एंड यहां पे थोड़ा बहुत मेरे को वॉलेटिलिटी मिली एंड इस वॉलेटिलिटी से काफी अच्छा पैसा बन गया. ऑलमोस्ट 0.3% का जो पैसा है लास्ट 40-30 मिनट्स में ही इस वॉलेटिलिटी से बन गया था. सो इट वाज अ डिसेंट एक्सपायरी फॉर मी. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी कैसा रहा. बाकी टुमारो आई विल सी यू आफ्टर मार्केट आवर्स. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.